हेलो स्टूडेंट, मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य जी और आज हम लेकर आया हूं दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये दोनों ही प्रॉब्लम इस साल जनवरी जेई मेंस एग्ज़ाम पर आ चुके हैं, लेकिन इस तरह कंसेप्ट आपको हर तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर काम आएगा। सो वीडियो पर लास्ट पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The electric field of two plane electromagnetic plane waves in vacuum are given by E1 equal to E0 j cap cos omega t minus kx and E2 equal to E0 k cap cos omega t minus ky। इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 is directed along y-axis but propagating along x-axis positive x-axis। समझा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 is polarized or directed along y-axis but is propagating जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप पर along x-axis। दूसरी तरह the electric field E2 is directed along z-axis that is k cap but इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जा रहा है along y एक्सिस। ठीक है। नाउ a point charge at t equal to 0, a particle of charge q is at origin with a velocity v। The instantaneous force experienced by the particle is। नाउ द क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड q is situated at t equal to 0 at origin, okay, with a velocity directed along y axis। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इस चार्ज पर क्या फोर्स एक्ट करेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हमको जो गिवन इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लिखना पड़ेगा, E1 एंड E2। बहुत ही सिंपल, E1 एंड E2 लिखना पड़ेगा। एंड E1 का करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, E1 का करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम पास लिख दिए। क्या वो V1 इक्वल टू E0 by C, that is all of you know that the ratio of electric field to the magnetic field is equal to the velocity of light, E0 by V0 equal to C। So we can conclude that V0 is equal to E0 by C। Okay, so E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक जो फील्ड होगा दैट इज B1, उसका एम्पलीट्यूड होगा E0 by C। ओके, एंड फेस विल बी सिमिलर। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, देखो इस जगह पर हम लिख चुके हैं के कैप, बट इस के कैप दैट इज किस तरह से मुझे मालूम चला कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एलोंग के कैप दैट इज जेड एक्सिस होगा। समझा? तो इस पॉइंट पर हम एक्सप्लेन करूँगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट propagation vector, that is the vector along which the electromagnetic waves is propagated, that is called propagation vector। okay, propagation vector, electric field and magnetic field
always are in right angular screw system, that is KEB or KEB or H magnetic field vector always act as a right angular screw system. That is, for example, suppose that the direction of propagation vector is along x-axis, that is x cap or I cap, and the direction of electric field is along y-axis, that is j cap or y cap, does not matter, then the magnetic field B or H will be directed along z axis. Okay. Similarly, if we consider propagation vector along z axis, that is z cap, and electric field along y axis, then इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस एक्स कैप. That is, if propagation vector is directed along z axis and the electric field is directed along y axis, then the magnetic field will be along x direction, that is along x axis. Okay. Now गौर से देखो, जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है along j cap, that is along y axis, but the propagation vector is along x axis. तब x cross j, that is will be k, and that's why इसका corresponding magnetic field, that is B1, will be along k cap or z axis. ओके. सो हमने इस तरह के कैप लिखे हैं. सेकेंडली, द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 is this which is given in that question, and the corresponding magnetic field will be E0 divided by C. ओके. फेस तो सेम रहेगा, cos ओमेगा टी माइनस के cos, सॉरी, यहाँ पर cos के ओमेगा टी माइनस के वाई होगा. सॉरी, इस पर गलत हो चुके हैं. cos ओमेगा टी माइनस के वाई होगा. बट बात यह है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. गौर से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोपागेट कर रहा है एलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि के साथ वाई है, तो वाई क्रॉस, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन वेक्टर है वो है एलोंग जेड एक्सिस. तो वाई क्रॉस जेड कैप, दैट इज y cross z cap equal to y cap cross z cap will be x cap, that is along x axis. So here the direction of B2, that is इसका जो corresponding magnetic field होगा वो I cap बराबर रहेगा. So B2 is equal to E0 by C I cap cos omega t माइनस इस के ओमेगा टी माइनस के वाई होगा, नॉट के एक्स. ओके. अब देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स होगा वो होगा QE0 जे कैप. यहाँ पर जो कॉस पार्ट है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये काम नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर एक चार्ज Q सिचुएट अवस्थित होती है तब फोर्स एक्ट ऑन दैट चार्ज पार्टिकल
force acting on that charged particle will be F1 equal to Q E0. So इस कोसाइन पार्ट काम नहीं आएगा. ओके. सिमिलरली E2 का करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो होगा F2 इक्वल टू Q E0. ओके. एंड नाउ द मेन पार्ट इज दैट B1 का कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा. इस फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पर वो कहता है लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स. ओके. एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट फोर्स इज Q into V cross B. Since this force is associated with B1, so we can written as F1 equal to Q V cross B1. Okay. Now Q very fine. यहाँ पर भी कोसाइन पार्ट नहीं काम आएगा. तो B1 का एम्पलीट्यूड E0/C और V यहाँ पर था 0.8C. तो अगर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है तब होगा 0.8 E0. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज दैट द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस F1. इसका डायरेक्शन क्या होगा. बहुत सिंपल. V इज अलोंग y एक्सिस. तो y दैट इज जे कैप क्रॉस और V1 का डायरेक्शन क्या होगा के कैप. तो y कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू I कैप्स. सो द डायरेक्शन ऑफ F1 विल बी अलोंग I कैप. Similarly the force associated with B2 is designated as F2 and is written as Q V cross B2. Okay. Now V that is 0.8C, V यहाँ पर था 0.8C. उसके साथ अगर तुम B2 का एम्पलीट्यूड मल्टीपल कर लेते हो तब आ जाता है 0.8 E0 एंड Q. और यहाँ पर भी इस कोसाइन पार्ट नहीं काम आएगा. फोर्स ढूंढने पर, इंस्टेंटेनियस फोर्स ढूंढने पर इस तरह कोसाइन पार्ट दैट इज फेस पार्ट नहीं काम आता है. ओके. तो डायरेक्शन क्या होगा. देखो V का डायरेक्शन है अलोंग y एक्सिस दैट इज जे कैप क्रॉस B, सॉरी यहाँ पर B2 का डायरेक्शन है अलोंग I कैप. तब जे कैप क्रॉस I कैप विल बी अलोंग माइनस के कैप दैट इज माइनस जेड एक्सिस बराबर इस F2 फोर्स होगा. तो इस तरह मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा अलोंग माइनस जेड एक्सिस दैट इज माइनस. तो अगर हम कंपोनेंट वाइज सारा का सारा फोर्स ऐड कर देते हैं तब क्या आती है. गौर से देखो. F इक्वल टू, देखो सभी फोर्स पर Q E0 टर्म कॉमन है. तब Q E0 टर्म हम कॉमन लेते हैं और तब ब्रैकेट पर रहते हैं 0.8 I कैप. ओके. एंड जे कैप टर्म एक ही है तो Q E0 टर्म अगर कॉमन जाता है तब इसका कोफिशिएंट होगा 1 दैट इज ओनली जे कैप. और देखो के कैप टर्म दोनों हैं तो इसका अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तब आता है 0.2 प्लस 0.2 के कैप और Q E0 तो कॉमन ही है ब्रैकेट के बाहर. तो इस तरह हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट के ई एंड वी दैट इज प्रोपागेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक field vector and magnetic field vector always
are in right handed system. Okay, that is k, we can conclude that k cross e equal to सम कांस्टेंट होगा b, और इस कांस्टेंट का वैल्यू है k क्रॉस e इक्वल टू म्यू ओमेगा. ओके, म्यू ओमेगा, सॉरी यहाँ पर तब एस होगा. ओके, तो ये है हमारा यह तरफ फोर्स का इक्वेशन, दैट इज फोर्स का वैल्यू, और ये वैल्यू डी नंबर ऑप्शन से मैच करता है. तो यहाँ पर सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा डी. अब आज का सेकेंड सवाल और लास्ट सवाल. ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग द डायरेक्शन दिस. Since the electromagnetic wave is propagating along this direction, we can conclude that this is the direction of propagation vector. यही है propagation vector का direction with its polarization along the direction k cap. Okay, यहाँ पर polarization का direction मतलब है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का direction. Okay, always remember that the polarization acts along that direction in which the electric field is directed, along which the electric field is directed. Okay, the correct form of magnetic field of the wave would be ये चारों के चारों ऑप्शन पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरियस एक्सप्रेशन दे रखे हैं, लेकिन सभी पर B0 एक कांस्टेंट टर्म कॉमन है. यहाँ पर कोसाइन पार्ट का वेरियस टर्म है, लेकिन साइन कुछ डिफरेंट है, प्लस और माइनस. तो ऑलवेज इस पॉइंट पर आपको याद रखने पड़ेगा कि जो डायरेक्शन होगा प्रोपागेशन वेक्टर का वही कॉस और साइन के अंदर होगी, और उसकी आगे पर माइनस साइन होगी. ओके, सिंस यहाँ पर प्रोपागेशन वेक्टर दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, सो इस टर्म कॉस टर्म पर कॉस के जो ब्रैकेट है उस के अंदर होगी, और इसके सामने एक नेगेटिव साइन होगी. ओके, और इस तरह ऑप्शन मैच करती है ऑप्शन ए के साथ और ऑप्शन सी के साथ. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. यहाँ पर एक क्वेश्चन है. ओके, नाउ शुरू करते हैं. सिंस पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन के कैप दैट इज जेड एक्सिस, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग जेड एक्सिस. इस पॉइंट पर आपको याद रखने पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन. बट हम पिछले क्वेश्चन पर बता रहा था प्रोपागेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम पर कनेक्टेड है, यानी के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू ओमेगा एस और ओमेगा बी, क्योंकि म्यू एस इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी. ओके, नाउ इस रिलेशन के जरिए, इस रिलेशन के मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे. ओके, तो देखो
के क्रॉस इक्वल टू म्यू ओमेगा एस। यहाँ पर प्रोपागेशन वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, ये क्वेश्चन पर गिवन था। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस क्वेश्चन पर दिया था एलोंग के कैप, क्योंकि इनडायरेक्टली पर बता रहा है ये के कैप डायरेक्शन पर होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन बराबर। ओके, तो पोलराइजेशन वेक्टर इस क्वेश्चन पर दे रखे हैं अलोंग जेड एक्सिस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर प्रोपागेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब क्या मिलता है, देखो आई कैप क्रॉस के कैप मीन्स माइनस जे कैप एंड जे कैप क्रॉस के कैप मीन्स आई कैप। तो इसको सम अरेंजमेंट सम लिखते हैं, आई कैप टर्म को आगे और माइनस जे कैप टर्म को बाद में अगर लिखते हैं तब आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 ये होता है। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि के क्रॉस इक्वल टू म्यू ओमेगा एस, और इसकी मदद से हम म्यू इंटू एस मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर, दैट इज बी इज इक्वल टू के क्रॉस ई बाई ओमेगा। ओके, तो के क्रॉस ई direction will be the direction of K cross E will be along B. So अगर हम K और E that is propagation vector and electric field vector को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन A आ जाते हैं। तो B0 आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कॉस ओमेगा टी माइनस के इंटू प्रोपागेशन वेक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट कर रहा था एलोंग आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। सो इस टर्म पर आगे एक नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो यही दे रखा था ऑप्शन नंबर ए पर, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। ये मेरा हिंदी पर पहला वीडियो है, तो अगर कोई गलत हुआ तो आप लोग माफ़ कर देना। तो वीडियो अगर कोई भी थोड़ा सा काम आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।